ہوتا ہے؟ آپ نے کہا جو ہر ایک کو مل سکتا ہو. نہیں جناب ایسا منصب نہیں ہے. خود قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ ظالموں کو نہیں مل سکتا. تو خصوصی منصب یعنی جو ظالم نہ ہو تو پھر عمومی تو نہیں رہا عکس ہو اس کو مل سکتا ہے. عمومی تو نہیں رہا نا, یہ عمومی ہے نا. اچھا جو ظالم کا عکس ہوگا تو عموم ہوگا, اس کے اندر عمومی نہیں آپ نے ہوگا. کہا عمومی کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں, عمومی سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ ظالم کو بھی مل جائے, تو خصوصی ہو گیا نا بھائی. ہاں خصوصی ہو گیا نا. جب شرائط آ جاتی ہیں تو عمومیت ختم ہو جاتی ہے. عمومی کا آپ جو ہے نا مطلب سمجھو, عمومی کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی طرف سے ہی وہ منصب خاص ملتا ہے یا وہ مانگا بھی جاتا ہے. اللہ مانگا تو بتا دیا, اس کا جواب تو دے چکا. قرآن میں ہے, قرآن میں مانگنے کا حکم دیا, قرآن میں ہے مانگنے کا. میں آیت پڑھتا ہوں, میں نے کبھی انکار کیا؟ آیت پڑھتا ہوں. میں نے تو خود آپ سے کہا کہ ابراہیم بھی تو مانگ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے. دیکھو آپ آیت کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا کیا گیا کہ آپ ظالم کو نہیں آیت ملے کیوں گا. پڑھتے ہیں؟ میں آیت پڑھ چکا, میں آیت پڑھتا ہوں, بتا دیا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين. تو میں پہلے قائل ہوں, آپ کیوں ضائع کر رہے ہیں سر؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگنے سے نہیں مل سکتا. میں نے تو کہا نبوت بھی ملتی ہے. ابراہیم نے اپنی اولاد میں نبی مانگا, جی, تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت جو عمومی منصب بن گیا. نہیں خصوصی رہا نا. دعا میں مانگنے کے باوجود خصوصی رہا, امامت بھی خصوصی رہی. اب دیکھو نبوت کے لیے یہ تو حکم نہیں ہے نا اللہ قرآن پاک کے اندر کہ ہر ایک جو امتی ہے وہ کہتا رہے کہ اللہ مجھے نبی بنا دے امتی کے لیے, یہ تو حکم نہیں ہے. لیکن امام معذرت کے ساتھ چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے, امامت چل رہی ہے, ہو چکی, امامت ختم نہیں ہوئی ہے. امامت چل رہی ہے, امامت ختم نہیں ہوئی نبی کے بعد. سنو نا, امامت ختم ہو گئی ہے یا چل رہی ہے ابھی تک؟ کیا امامت اب 12ویں امام سے امامت کس نے ختم کی؟ اللہ نے. قرآن کہتا ہے وجعلنا للمتقین اماما, تو دعا مانگتے رہو کس کی وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ متقین کا ہمیں امام بنا دے. کس کی دعا ہے یہ قرآن کی دعا ہے. کس نے دعا مانگی ہے؟ قرآن نے الفاظ سے کہا ہے مومن کی دعا ہے کہ مومن دعا مانگے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. پہلے آیت نکالیں, ٹھیک ہے جی نکال, ہاں ٹھیک ہے. پھر دوسرا تھا امامت کا باب بھی کسب بھی چیز ہے. آیت نہیں کرے بطور معلومات جی. امامت کی بس تھوڑا سا اعتراض آتا ہے. آپ کو مل رہا ہے سوال جی تحقیق ہے, اور سوال جی تحقیق ہے. بے نمبر امامت ہے سین پان بتائیے صحیح پڑھا یہ آیت صاف تھی نا. اصول شیعہ ذکر ہے امامت سین پان بتائیے. دیکھو نا بھائی نے دعویٰ کیا تھا کہ نبوت ختم ہے. جی جی, قرآن کریم کہتا ہے عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کرتا, عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کرتا ہے, اور عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ان کی ایک خصوصیت بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کہتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں اپنے خدا سے کہ ہمیں ازواج عطا فرما, ٹھیک ہے, اور ہماری اولاد کو, ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ہمیں متقین کا امام بنا, پیشوا بنا. ٹھیک, اس سے کیا ثابت کیا آپ نے کہ عباد الرحمن یہ دعا مانگتے ہیں. کیوں دعا مانگتے ہیں؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں امامت موجود تھی, وہ دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, اب امامت ختم تو نہیں ہو گئی تھی نا رسول اللہ کے بعد, جاری تھی نا, دعا مانگتے تھے. چلو ٹھیک ہے. اب کیا مسئلہ ہے آیت کے اندر
मैंने हजरत से सवाल किया है, बात इनसे होगी कि जब तक मैं पूछ रहा हूँ तो इतनी देर उसूल पे टाइम लगाया वो क्यों था? उसूल को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ। हम भी बात कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है अगर ये है भैया ये उसूल आप लोगों ने कहा, खुद बनाया था ये, आप लोगों ही ने कहा था। पहले इतना टाइम लगाया मेरी बात इसमें, सुनिए। उसूल बनाने में टाइम लगाया। एक मिनट, हाँ, बस इतना लिखा था। बात करें। मैंने ये सवाल किया था कि नबूवत जो है और इमामत जो है, नबूवत जो है वो कोई और आदमी मांग नहीं सकता। आपने कहा वो तो ख़त्म हो गई है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इमामत उसमें आपने ये दावा किया कि वो भी ख़त्म हो गई है 12वें पे, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन उसके बावजूद मैंने आयत पढ़ी जो आयत क़यामत तक रहने वाली है, ठीक है, जिसके अंदर ये हुक्म है कि वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, ऐ अल्लाह तू हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। तो ये आयत में दुआ का अल्फाज हैं, मोमिन की सिफात है कि मोमिन दुआ मांगता रहता है कि अल्लाह मुझे तू मुत्तकीन का इमाम बना दे। इसके मुखालिफ कोई ऐसी आयत दिखाएं कुरान पाक की, क्योंकि आप ज़वाहिर को मानते हैं और ज़वाहिर में आप कहते हैं कि हम कुरान के ज़वाहिर को मानते हैं, तो ज़वाहिर में ये जो आयत है ना, ये आयत क़यामत तक चलेगी। और आप कह रहे हैं कि 12वें पर इमामत ख़त्म हो गई, तो ये ज़वाहिर के खिलाफ हो जाएगा। और आपने जो ये दलील दिया, एक मिनट मेरी बात पूरी हो उसके बाद देखो, आपने कहा कि जब ये आयत उतरी थी मोमिन दुआ मांग रहे थे, उस वक्त इमामत पूरी नहीं हुई थी। गोया कि हज़रत अली ने दुआ मांगी, हज़रत हसन ने, हज़रत हुसैन ने, और जो आइमा जो आप मानते हैं उन्होंने दुआ मांगी। अब जब 12वें की बारी आई तो ये दुआ ख़त्म हो गई। हालांकि ऐसे नहीं, ज़वाहिर कुरान के भी ये आपकी दलील गलत है। ज़वाहिर कुरान कहते हैं जो हुक्म जैसे भी है उसी तरह क़यामत तक रहेगा, या ये नहीं है। ज़वाहिर कुरान से यकीनन यही मुराद होगी कि जो हुक्म जैसे भी है वो क़यामत तक उसी तरह ही रहेगा। अगर आपके पास कोई ऐसी दलील है जिसके अंदर इस बात की वजाहत हो कि इमामत जो है वो 12 इमामों पर पूरी है, तो वो आयत आप पढ़ें। अगर नहीं तो इस आयत से मालूम हो रहा है कि इमामत जो है, इमामत के लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि जो वो नबूवत की तरह हो, अल्लाह की तरफ से आए, ठीक है। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि इमामत जो है क़यामत तक हर एक शख्स को जो मांगेगा उसको मिलेगी। अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये कैसे इमामत से मुराद नबूवत है, ये नबूवत है, यहाँ नबूवत है। तो ये नबूवत आप मांगने की दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम है, ये वजअलना लिलमुत्तकीन इमामन, एक सेकंड सर, वजअलना लिलमुत्तकीन इमामन में नबूवत है, इमामत है, इमामत है। हाँ। यहाँ पे वो जो इमाम से नबी मुराद कह रहा है, इमामत है, वो जो नबी कह रहा है, तो ये नबी कह रहा है। इन्नी जाइलुका लिन्नास अरे ये इमामा, वाली आयत जो इब्राहिम आपने अलैहिस्सलाम पेश के की लिए। मेरे भाई, ये आयत जी। किसकी है? ये आयत मोमिनीन की सिफात में है। मोमिनीन की सिफात जी, है, जी, जी। नबी तो नहीं है। नहीं है। यहाँ पे इमामत ही मुराद है, इमामती मुराद है। इमामत मुराद है ना, जी, जी। तो इमाम से मुराद इमामत है ना, जी, जी। नबूवत तो नहीं है। नहीं है। ठीक है, ठीक है। किससे दुआ मांग रहा है? अल्लाह से, तो क्यों मांग रहा है? कि अल्लाह मुझे क्या इमाम खुदा बना की दे। तरफ से? यानी क़यामत तक इससे चलेगी। ये कैसे साबित हुआ कि खुदा की तरफ से? इससे यह कैसे साबित होगा कि 12 तक पूरी है? अभी मैं 12वें तक पूरी पे बहस कब कर रहा हूँ? मैं तो ये साबित कर रहा हूँ कि इमामत खुदा की तरफ से। मौजूद अल्लाह रहकर बात करें यार। हाँ, ये बात है कि इमामत का मनसब अभी जो है- हम यहाँ पर बहस ये कर जी, रहे हैं जी। माजरत के साथ, जी, जी। कि हम यहाँ पर क्या ये बहस कर रहे हैं कि 12 इमामों की इमामत साबित कर रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि इमामत का जो मनसब है जी जी, वो खुदा की तरफ से। सही वहाँ इब्राहिम भी खुदा से मांग रहे हैं, यहाँ पे मोमिनीन भी खुदा से मांग रहे हैं। सही। और मैंने और दलील किस चीज को बनाया था? जी वो जो अहदी पे जेर है, ये मेरा मनसब, जी जी, मेरा मनसब जी, जालिमों तक नहीं पहुंचे। सही मनसब इमामत इलाही है, इस पर बहस है या नहीं है, सही। या खत्म हो गई बहस? सही फिर चलेंगे 12 इमाम की इमामत पर। सही। ये जो मनसब इमामत इलाही है, तो मुगालता ये बात पैदा है, कर- मुगालता की बात नहीं, ये हकीकत है ना। ज़वाहिर कुरान को या बात अरे भाई ज़वाहिर कुरान पे पहले एक टॉपिक को कंप्लीट करें। टॉपिक आपसे कंप्लीट बोले, हो रही है ना अभी। टॉपिक एक कंप्लीट करें। देखो- पहला मौजू था कि जी। इमामत जी। एक इलाही मनसब है जी, जी। या नहीं? सही। क्या साबित हो गया इलाही है? नहीं हुआ? इमामत जो है अगरचे इलाही मनसब हो या ना हो, उसके साथ हो या है या नहीं है? आप प्लीज इस यार, बात को ये टाइम वेस्ट नहीं करें, इस हमारी बात को बहस ये है। आप इस बात को भी जाहिर करते जाएं। भाई इसके हम साथ साथ आगे एक एक चीज को साबित करेंगे। पहले तो हाँ। ये यकीन दहानी करवाएं, ये यकीन दहानी करवाएं पहले आपको। हम हर चीज जी। पर दलील कायम करेंगे, बुरहान कायम करेंगे। सही है, अभी पहली बहस ये हो रही है कि इलाही है या नहीं? सही है, हाँ या नहीं? सही है। अल्लाह इलाही है, इलाही है। सही है। इलाही होने का मतलब है कि आवाम इस पर तकर्रुर नहीं कर सकती। अच्छा, अच्छा, सही है। मानते हैं ये बात? ये आपका मजहब है ना, तो हम मान रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूँ साबित क्या हुआ?
देखो ना हमारा जो मसलक है मसला नहीं इमामत- पूछ रहा, कुरान से क्या साबित हुआ? भाई ये ईमान है ना, मसलन मैं इमामत पूछ ईमान है रहा ना। हूँ कुरान से। एक सर बात आपका मेरे नाम सुनिए। क्या है मेरे भाई? मेरा नाम नसीर मोहम्मद है। नसीर मोहम्मद भाई, सवाल ये पूछ रहा हूँ कि कुरान से इमामत एक इलाही मनसब साबित हुआ या नहीं? सही। अब सही आप क्या कह है? रहे हैं कि इमामत का सबूत कुरान से आपने दिया। ये मैं ठीक नहीं है। कह रहा, देखें आप बराए मेहरबानी मेरे अल्फाज मुझे कहने दें। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान की आयत से ये साबित हुआ कि इमामत एक इलाही मनसब है। सही है, साबित हुआ या नहीं? हुआ, साबित हुआ। इलाही मनसब है। ठीक है, तो बात खत्म है। शिया सुन्नी के दरमियान बुनियादी इख्तलाफी यहाँ पर है ठीक कि अहले सुन्नत बरादरान ये कहते हैं कि इमामत एक इलाही मनसब नहीं है। सही है, आपने मान लिया कि इमामत एक इलाही मनसब है, बहस यहीं पर खत्म हो गई। ठीक है, बहस खत्म हो गई। मुबादियात में, लेकिन मसला ये है फंडामेंटल्स में कि आपने हमारी बात मानी। जब इमामत खुदा की तरफ से इसका मिलती मतलब है, ये है कि सकीफा उसकी बनी सिफात- सादा में इमामत नहीं मिलेगी किसी को। सही, वाह माशाल्लाह। ठीक है। इसका ये मतलब है सही। इमामत खुदा की तरफ से आएगी। लेकिन मसला इमामत के खिलाफ मसला ये है कि देखो अब एक अच्छा, मतलब जो खलीफा है वो इमाम नहीं है? एक अच्छा मिनट, दोनों एक ही चीज है? नहीं, इमामत खलीफा खिलाफत। इमाम नहीं है। आप बताएं। अरे यार आपसे एक मिनट, पूछा, आपने कहा ना वो खिलाफत है। आप एक बात- देखे ना, एक तो तीन आदमी बोलेगा जब मुझे उनसे सवाल करने थे। सही। अगर तीन आदमी बात करेंगे मुझे सवाल का भी हक खाली से होगा और आप दूसरे के सर नहीं डालेंगे। आप बताएं, आप हजरत अबू बकर को इमाम नहीं मानते? जी मानते हैं, खलीफा भी मानते हैं। जी मानते हैं, तो उनको सकीफा बनी सादा में खिलाफत मिली थी। जी हाँ, जी, वही इमामत है या इमामत उसके अलावा कोई और चीज है? वही है। वही है, यही तो कह रहा हूँ। तो अभी भाई ने मान लिया कि इमामत खुदा की तरफ से मिलती है, तो सकीफा में कैसे मिलती है? जी 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 जी, सही है। अब बताएं ना, इसका जवाब अब दे ये भाई। मसला आगे इसका जवाब लेना। आप कह रहे हैं कि वो इलाही मनसब है। हाँ। भाई, चार आदमी- यानी एक जानिब आप कहते हैं इलाही मनसब है, बात आयत सुनिए। कुरान ये कहती है। एक बात- इवन कितनी बड़ी बात है, बुनियादी बात आप सुनिए। अगर सकीफा बनी सादा इसका में जवाब है, दें जवाब, आप दें। जिस तरह रिज़्क़ को अल्लाह ताला देता है मा फ़ौक़ल असबाब, लेकिन मा तहतल असबाब जो कहा है, तो जैसा फलां मुझे फलां चीज़ दी है, मतलब भैंस वगैरह फलां ने दी हैं, तो इसी तरह यहाँ पर खिलाफत ने भी अल्लाह दिए हैं, लेकिन वो असबाब के मातहत। हाँ, तो नबूवत के लिए कौन से असबाब होते हैं? नबूवत वह भी चीज़ है, वो कसब भी चीज़ नहीं है। कसबी नहीं है ना। हाँ। तो इमामत भी तो वह भी है जब इलाही अच्छा, मनसब है। वह भी चीज़ की दरख्वास्त होती है दुआ। क्योंकि हाँ होती है, जैसे हजरत इब्राहिम ने की रसूलुल्लाह के लिए। ये तो नबूवत मुराद है। तफासिर अरे देखो, तो वह भी है, लेकिन आप दरख्वास्त तफासिर हुई। देखें ना इनके बारे में, इमाम अरे के। मेरे भाई, अभी आपने कहा कि जो चीज वहबी हो, हाँ। आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, हो रही है। आपने कहा कि जो चीज वहबी उसके लिए दरख्वास्त, नहीं होती है। इब्राहिम ने रसूलुल्लाह के लिए दरख्वास्त की या नहीं की? कौन सी? इब्राहिम ने कि इस उम्मत में एक नबी मबूस फरमा, दरख्वास्त की या नहीं की? हाँ या दरख्वास्त नहीं की है। की? तो क्या नबूवत वहबी नहीं थी? वो नबूवत दरख्वास्त की, नबूवत की दरख्वास्त नहीं की थी? ये खुद ने ये कि नहीं इस कहा। उम्मत में एक नबी मबूस फरमा, और क्या है? सही, अभी तो आप कह रहे हैं कि वो वहबी की दरख्वास्त ही नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा मुगालता है, मुझे इस चीज को क्लियर करने दें। जी मुनाजरा बाद में करते रहिए। ये एक अमूमी बात, ये जब अपने मसलक के अकीदे को साबित करते हैं तो ये बात बता दी गई है, कहीं बैक ऑफ द माइंड ये बात आ गई है कि जो वहबी चीज़ है ना, वो दुआ नहीं है उसके लिए। ये बात सराहतन गलत है। अच्छा, मैं इसकी दलील देता हूं, एक दलील नहीं है, कई दलील है। हजरत ज़करिया ने दुआ की हजरत यहया के लिए, की या नहीं की कुरान में कि मुझे एक वारिस अता फरमा जो मेरा और आले याकूब का विरसा पाए। सही, और आपके उलमा ने लिखा यहाँ विरासत से मुराद नबूवत है। जी है या नहीं है भाई? सही, तो ये किसने कह दिया है कि जो चीज वहाबी उसके लिए दुआ नहीं हो सकती? अच्छा, यही तो- भाई का पूरा था, वजालना लिल मुत्तकीन इमामा। दुआ क्यों मांगी जा रही है? ओ भाई, वहाबी है, दुआ की जा सकती है, अल्लाह देगा, नहीं देगा अल्लाह, नहीं देनी होगी। सही। कबूलियत तो खुदा के पास है ना, दुआ मांगी जा सकती है। अब देखो ना, वह भी पहले और बुनियादी कसबी बात- चीज़ के दरमियान में यहीं पर ही फर्क ख़त्म हो गया। क्या? क्योंकि नबूवत वह भी चीज़ थी, उसके लिए कुरान ने ये कहीं भी नहीं कहा कि अब नबी के आने के बाद, यानी हमारे नबी जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके आने के बाद भी
ये कुरान ने दुआ सिखाई हो कि अल्लाह नबी बना दे, ये आयत नहीं है, ठीक है। भाई अब उसके अभी सारी पर ये बात दलील है, इमामत वहाबी है या नहीं है, इमामत वहाबी है, इसलिए जी जी कि जो सूरह बकरा की आयत और है इसलिए वहां पे मनसब इमामत को खुदा ने अपनी तरफ कहा ये मेरा मनसब है, इसलिए वह भी और नहीं इसी है वजह से कुरान इब्राहिम ने खुदा खत्म से उसको दुआ- नहीं किया, इसलिए हाँ? वह भी नहीं है। देखो इमामत आप कहते हैं अच्छा वह भी चीज़ मतलब है। जब अगर कोई कुरान चीज एक सेकंड, अगर कोई चीज जारी हो तो इसका मतलब वह भी नहीं होती। नहीं वो अभी नहीं कसम अच्छा से- तो रसूल अल्लाह से पहले नबूवत जारी थी, उस वक्त वह भी नहीं थी, वो वह भी थी, तो जारी तो नबी थी। के बाद खत्म हो गई। अरे उससे पहले तो अब जारी इमामत थी, का- हजारों इमामत का साल इख्तिताम जारी लिखा है रही। आप। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये उसूल कुरान में कहाँ बयान हुआ है कि मा जो काना चीज वहाबी मुहम्मदुन होती है? अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, ये कुरान अरे लिखा है। मैं ये पूछ रहा देखो, हूँ, ये नबूवत वहाबी चीज़ उसूल है। ये उसूल वहाबी तो उस आयत की वजह से। ओ मेरे देखो भाई, नबूवत वह भी चीज़ है, एक बात, नबूवत वह भी चीज़ है, कुरान ने उसकी एंड को बयान किया है। अगर इमामत भी इसी तरह ही वह भी है तो कुरान से कोई एंड दिखाए, क्यों नहीं, उसके वह भी होने के लिए जरूरी है। कहाँ है ये दलील, किस आयत में लिखी हुई है कि जो चीज वह भी हो जी उसका एंड होता है? किस आयत में लिखा है? क्योंकि जो चीज़ अल्लाह पाक अपनी तरफ से ये चूम कर देते हैं, मैंने आपकी हाँ, बात, कुरान के मैं अंदर कह लिखा रहा हुआ हूँ है, कि कुरान करीम कुरान में है। कुरान करीम में जी। ये बात कहाँ लिखी है जी जी कि जो चीज वह भी होती है उसका एंड हो जाए? जी। अब देखें कुरान पाक के अंदर है कि अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकत रसूलों व मिनन नास, कि अल्लाह पाक रसूलों का चुनाव करते हैं मलाइकों में से और इंसानों में से। अब ये बात भी बता रही है कि नबूवत वह भी चीज़ है, और अगर नबूवत कसबी चीज़ होती तो उसके लिए एंड न होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए एंड हैं, आप खातम हैं। कुरान के ये व आले इब्राहिम व आले इमरान अलल आलमीन, तो आले इब्राहिम खत्म हो गई क्या? ये आले इब्राहिम से आप एंड है ना, आप खत्म हो गई। आप अलैहिस्सलाम खत्म आले है? इब्राहिम खत्म हो गई। नबूवत खत्म हो गई, मैं कह रहा हूँ आले इब्राहिम का इस्तीफा हुआ है आयत में। चुनाव हुआ है ना। हाँ, आपने चुनाव कहा हुआ, जिसका चुनाव में चुनाव से- हो खुदा की तरफ से वो खत्म हो जाती आप है, देखो ना, तो आले इब्राहिम खत्म हो गई। चुनाव है हजरत आयतें इब्राहिम पढ़ रहे हैं अलैहिस्सलाम यार, की आल का, प्लीज यार। हजरत ईसा का मैं आपसे जो आल का, सवाल पूछ रहा हूँ इस उसका चुनाव से जवाब दे मुराद भी मेरे वही दोस्त। मर्तबत है। मेरे दोस्त, मैं आपसे उस मर्तबत जो मैं कसबी आपसे चीज़ है सवाल उसकी एंड पूछ है, रहा वह भी हूँ। चीज़ उसकी एंड मैं है। सवाल पूछ रहा हूँ, आले इब्राहिम खत्म जी। हो गई है? नहीं जारी है? जी चुनाव हुआ है? जी, ये तो आप बात चुनाव कर रहे हैं हुआ ज़ात है? पर, ये नबूवत औसाफ मैं में से कह रहा है। हूँ आयत में चुनाव हुआ है। आप औसाफ और ज़ात को मैं पहचानते हैं कह या रहा नहीं हूँ पहचानते? आयत में चुनाव हुआ चुनाव है, जारी भी चुनाव, है, हाँ जारी। चुनाव के बाद भी जारी रह जी सकती है। ठीक है, तो नबूवत भी जारी रह सकती है, तो नबूवत जारी रह सकती थी, अल्लाह ने अगर खत्म ना किया होता। तो इमामत भी मैंने जारी कब कहा कि जारी नहीं इमामत रह भी सकती? जारी, अल्लाह ने खत्म अगर की नहीं। खत्म ना करता तो जारी रहती। अल्लाह ने जारी खत्म की नहीं इमामत। किस तो एक मैंने आयत कब पेश- कहा, एक आयत मैंने पेश कब करी। कहा कि जारी तो खत्म आपने नहीं? कहा था 12 पे खत्म है, अरे मेरे भाई 12वें पे खत्म है, 12वां तो आएगा क़यामत के करीब, तो जारी है इमामत। पहले उसका वजूद तो हो ना। तो ये अभी इमाम मेहंदी के वजूद पर बहस हो रही है। अब आप टॉपिक चेंज करते रहेंगे और टॉपिक हंसते चेंज नहीं रहेंगे। हुई। अब आप बात हंसते ये रहेंगे, चल रही टॉपिक है चेंज करते रहेंगे। कि उस मतलब वक्त जो पहली मैंने बहस बात ये चल होती रही है। है। दोस्त मेरी अर्ज सुन ले, बात यहाँ से मैंने शुरू वो हुई। चुनाव वाली बात पढ़ी मेरे थी। भाई मेरी बात आयत सुन पढ़ी ले, थी, उसमें चुनाव हम और यहाँ साफ पर का था, बात साफ ये का कर नहीं था। रहे थे आपने कि जो इमामत दलील वह की भी चीज़ है पढ़ी। या नहीं है, ठीक है। इमामत एक इलाही मनसब है जी जी या नहीं है। सही है, दलील आपने मुझसे मांगी, सही मैंने दलील दी, सही। उस आयत का जवाब दें। सही आयत में कहा गया इलाही मनसब है, सही नहीं कहा कहा है, गया। आपने मान भी लिया, मान भी लिया, तो वह भी हो गई ना। तो वह भी तो हो अजीब और गरीब ये- बात है, इलाही मनसब भी देखो- मांग रहे, वह भी नहीं मान रहे, तो फिर बहस अब क्या इसमें है? फर्क तो आप समझाएं ना, किस चीज कि में फर्क? नबूवत भी वह भी चीज, इमामत भी वह भी इमामत और नबूवत के फर्क पर अभी बहस नहीं कर रहे, ये टॉपिक नहीं है चीज़। नहीं, हमारा। वहाबियत के अंदर तो दोनों वहाबियत का मुत्तफिक हैं मतलब ना। है जो चीज खुदा की तरफ से हो, वहाबियत में तो दोनों मुत्तफिक हैं जो या नहीं? चीज खुदा की तरफ से हो। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। बिल्कुल एक है, इकट्ठे एक है जी, तो दोनों एक बात में। खत्म एक चल रही है, ये क्यों? क्यों? अल्लाह की मर्जी है, मशीयत है उसकी, उससे आप सवाल करने वाले कौन होते हैं? हाँ, ये आप पूछ अल्लाह से सकते हैं क्या ना। ये सवाल कर सकते अल्लाह हैं पाक- कि अल्लाह तूने नबूवत अल्लाह को पाक खत्म ने क्यों कर नबूवत दिया? को इख्तिताम पर ये पहुंचाया, कौन सा सवाल है आपको यार? खातम बनाया। अल्लाह तूने जो है और इमामत ईसा को को जो है खत्म क्यों नहीं आखिरी किया? वक्त में क्यों भेजेगा? इमामत अल्लाह के तो लिए क्यों इमाम कहा? मेहंदी को आखिरी वक्त में क्यों वो भेजेगा? हजरत ये ईसा कौन से अलैहिस्सलाम सवाल आएंगे आते तो हैं वो यार? बैज़त नबी के नहीं आएंगे। यार टाइम जाया कर बैज़त रहे हैं। उम्मती के अब आएंगे। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि अल्लाह ने नबूवत क्यों खत्म कर दी और इमामत को क्यों जारी रखी? देता हूँ ये जवाब इस बात इमामत का। वजालना अब दे रहा हूँ जवाब। जिसमें हर अब भाई मुत्तकीन की सिफत अब है। भाई अब इसके बाद मजीद इस पे बात नहीं होगी, हमारा असल टॉपिक से हम दूर आ गए, जी, जी। लेकिन इसका जवाब देता हूँ। जी नबूवत असल में खुदा की जानिब से अहकाम लाने का नाम है।
جی ٹھیک ہے. امامت ان کی گائیڈنس کا نام ہے, صحیح ہدایت کا نام ہے, رہنمائی کا نام ہے, قیادت کا نام ہے. صحیح صحیح چونکہ دین مکمل ہو گیا ہے, صحیح احکام شرع مکمل ہو گئے ہیں, صحیح اس لیے نبی کی ضرورت نہیں رہی ہے, صحیح اس لیے نبوت ختم ہو گئی ہے. صحیح. لیکن لوگوں کی ہدایت کی ضرورت تو قیامت باقی ہے, اس لیے امامت جاری ہے. اس لیے امامت جاری, لوگوں کی ہدایت. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب کوئی اور بات امام کریں. جو لوگوں کی ہدایت ہی نہ کرے, ہاں پھر آپ ابھی امامت پر بات ہو رہی ہے, دیکھیں گے کرتا ہے نہیں کرتا ہے. جی ابھی بحث صرف اتنی ہو رہی تھی. جی فتاوی رشیدیہ, جی آغا 246 کھول لیں. ہاں 246 لائیں ادھر سے دیں, مجھے دے دیں, میں نکالوں گا نا, حوالہ میں نے دینا تھا. نہیں آپ کا حوالہ تو ہے, ہے دیکھو میرا حوالہ. 246. نہیں میں نکال دیتا ہوں, کیونکہ ہر ایک میں الگ ہوتا ہے نا. ماں وہ 266 کا لے سے آؤں نا. انہیں میں فتح رشیدیہ یہ کون سی, مولانا کے پاس ہے, یہ آپ نے کون سی کتاب اس میں بھی فتح رشیدیہ ساری کتابیں ہوئی. نہیں تو میں پھر وہ ڈھونڈنے میں مشکل ہو جائے گی نا. مجھے فتاوی رشیدیہ دے دیں. یہ بھی فتویٰ ہے نا. جی جی, اس میں ساری کتابیں ہیں, اس میں مجھے حوالہ آسانی سے ڈھونڈ لوں گا نا. اس میں ان کی کئی کتابیں ہیں. یہ لیں بھائی, اب یہ اصلی والی سے پڑھا دیکھیں, یہ روشنی دکھاؤ. وہ روشنی ہے ادھر ہے. عرس کا التزام کرے یا نہ کرے, بدعت اور نادرست ہے. تعین تاریخ سے قبروں پر اجتماع کرنا گناہ خواہ اور لغویات ہوں یا نہ. اور جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے. ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے, اور وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت و جماعت سے خارج نہ ہوگا. دکھا رہا ہوں, یہ میں اس کو موڑ دوں. دوسرا حوالہ جو آپ نے پڑھا تھا, دوسرا بھی ایک جی جی جی, وہ بھی دکھا رہا ہوں. ہاں بھرے اس کا پیج نمبر 64. یہ لیں بھائی, جو لوگ شیعہ کو کافر کہتے ہیں, ادھر سن لیں میرے بھائی, جو لوگ شیعوں کو کافر کہتے ہیں ان کے نزدیک تو اس کی ناش کو ویسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر داب دینا چاہیے, اور جو لوگ فاسق کہتے ہیں ان کے نزدیک ان کی تجہیز و تکفین حسب قاعدہ ہونی چاہیے, اور بندہ بھی ان کی تکفیر نہیں کرتا. تو آپ کا جو بنیادی, اچھا چلیں یہ پڑھیں. کیا ارے میں وہ کیوں پڑھوں, میں تو فتاوی رشیدیہ پڑھا ہوں. تو یہ کیا ہے, یہ بھی دکھا رہا ہوں. تو یہ دیکھیں نا. ہاں اس میں بھی آپ کو دکھا رہے شیعہ کافر ہے, تو یہ کیا ہے, آپ کو بتا رہے ہیں نا. ارے یہ کیا ہے, آپ کے مولانا رشید احمد او میرے بھائی, دیکھو جب مولانا رشید احمد گنگوہی, حرمت کو ترجیح ہوتی ہے, علت کو نہیں. کیا مطلب, ٹھیک ہے, آپ گئے, آپ کو دکھا رہے ہیں. علت حرمت کہاں سے آئی ہے, اس میں فتویٰ ہے. یہ دیکھو نا فتویٰ ہے,
आपको दिखा रहे हैं ना? फतवा है, वो ये कह रहे हैं कि बंदा तकफीर नहीं करता। जी जी दिखाओ आप किताब दिखाएं किताब। ये ले देखें, इसका जवाब देना, कुछ और क्यों दिखा रहे हैं? सही है, कुछ और नहीं दिखा रहे, ये दिखा फतवा रहे नहीं है हैं क्या? इन्हीं की फतवा दिखा रहे हैं आप। अरे तो ये फतवा नहीं है इन्हीं का, ये किसी और का फतवा है क्या? ये कैसा जुमला है? शिया एक कोई पहले गिरोह तकिया तो करके फिर भी उस पे बात करें ना। अरे अबे तो ईदी जुदा है, अच्छा, तो- नाशरी जुदा है, जैदी जुदा है, फलाना वाह यार वाह, जो साहबा की सत्तर अस्सी हुआ है। तकफीर अच्छा साईं, एक मिनट, थोड़ी माफ़ी कर चाहता हूँ बीच में भी बोलने की। ये फतवा है, मलफूज है। क्या मतलब? हाँ, क्या है? फतवा है, मलफूज है। मलफूज क्या होता है? मलफूज ने फतवा आप क्या लिखा? मलफूज क्या होता है? आप यानी मुझे ये पढ़कर दिखाएं कि लिखा हुआ। अरे मेरे भाई, फतवा, ये फतवा रशीदिया है, इसमें देखें जो ना, कुछ लिखा है, देखें ना, आगा आप देखें, अल्फाज से खेल लें। नहीं, मैं अल्फाज माजरत से के नहीं साथ खेल अर्ज रहे। करूं, आप मुफ्ती आप हैं, अल्फाज ये से फतवा खेल रहे, रशीदिया है। होगा। मलफूजात वो होते हैं, मलफूजात किसे कहते हैं? जो इजाफा होता है उसमें, और बाद जगहों पर फतवा दिया होता है, उन सबको ऐड कर वाज़े देते हैं। दिया कि ये मलफूजात हैं, वाज़े कर दिया है, फतवा में लिखा तस्दीक था। है नीचे- हजरत नीचे। मौलाना, नहीं, तस्दीक। नीचे पढ़ो, ओ नीचे। भाई है, ऊपर वाली बात इससे है ही नहीं, आप देखें तो सही ना, तलबीस ना करें ना हजरत, ये बात ना करें ना। किस चीज में तलबीस कर रहा हूँ? ये आप- सवाल क्या है? आप ऊपर पढ़ रहे हैं। सवाल क्या है? देखें ना, देख सवाल क्या है इसका? मुफ्ती साहब बताएं क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना सर आप आए। आप नीचे तारे समझिए, बात वाज़े करें। जी जी बताएं। बताएं क्या। ये क्या लिखा है? सवाल है, क्या सवाल है? सवाल लिखा है, नहीं जवाब लिखा है। हाँ। तो फिर तो क्या? माना फतवा में होता है सवाल फिर जवाब। अरे भाई, ठीक है? ये एक मिनट, मैं आगा, मैं अर्ज करता हूँ, ये जो है, ये क्या है? ये इनका फतवा नहीं है? नहीं, क्या एक है मिनट, ये? मैं बताता हूँ, फतवा जो है बताता हूँ। अब यानी बहस ये हो रही है कि सवाल नहीं पूछा है, अच्छा, सही उन्होंने देखो ना। खुद से राय दे दी है, आप- तो फतवा नहीं है वो। हजरत आप देखें, आप संजय पढ़े लिखे आदमी हैं। जी, जी। फतवा में क्या होता है? सवाल होता है फिर उसका जवाब होता है, जी। यही होता है ना। जी। अब न इसमें सवाल न जवाब। ऐसे ही कुछ जहाँ- फतवा दे दे ठीक तो है, अगर कोई खुद राय दे तो हाँ, फतवा नहीं खुद होगा राय- वो। वो फतवा नहीं होगा। आप फतवा का माना जानते हैं? नजरिया होगा उसका, नजरिया होगा। हाँ, तो यानी मौलाना है। रशीद है, फतवा नहीं है। बहुत अच्छी बात। तो यानी मौलाना रशीद है तो कोई यानी उसके अकीदे में वो शिया मुसलमान। समझौता था, समझौता। एक सेकंड, यानी अरे मैं ये जो चीज है, अब ये क्या है? अब मैं आपको सवाल जवाब बताता हूं। फतवाए रशीदिया किताब का नाम है, उसमें ये बोल रहे हैं कि उनका फतवा नहीं है, मैं आपको क्योंकि सवाल नहीं उनका- सवाल नहीं किया गया, वैसे ही जवाब दे दिए। उनका मैं फतवा आपको मैं बताता हूँ। आदे- साईं, मैं उसका आपको उर्स वाला तो सवाल था। मैं अभी आपको बताता हूँ। ये राफिजी सुने, नजरिए और अकीदे में फर्क हुआ। नजरिए और अकीदे में फर्क होता है? हाँ होता है, मसलन आप जानते हैं इस बात को क्या अच्छी क्या? तरह। वो डिफाइन नजरिया होता है ख्याल, ख्याल होता है, नजर और नजरिया। फिक्र, और फतवा जो होता है वो मुफ्ता भी कौल होता है, उसके माना पक्की बात होती है। फतवा है फतन से, फतन की माना ही नौजवान है। आप देखें ना, एक बात इस तरह गड़बड़ न करें। ये कच्ची बात है ना। एक हाँ, ये कच्ची बात है। क्या पक्की बात है ये मैं समझाता हूँ। सवाल राफजी रुक जाए। तबर्राई के जनाजे की नमाज जो कि असहाबे सलासा की शान में कलमाते बेअदबी कहता है, पढ़नी चाहिए या नहीं? जवाब, ऐसे राफजी को अक्सर उलमा काफिर फरमाते हैं, लिहाजा उसकी सलाते जनाजा न पढ़नी चाहिए। ठीक, ये अपना तो फतवा ही नहीं दिया नहीं जाता है। माना नहीं दिया, फतवा ही नहीं ठीक है। दिया। अब फतवा ही नहीं दिया। अब मैं बता रहा हूँ, आप व्याप्ति अभी कर मैं रहे नहीं हैं। रुक मैं जाए, सर, एक रुक है ना, जाए, रुके एक सेकंड साईं, मुफ्ती साहब, जिस तरह एक अच्छा, मिनट, आपने जिस तरह एक बात पढ़ी फिर उसकी तायद में दूसरी बात पढ़ी ना, ठीक है ना। अब मैंने उनका अब फतवा पढ़ा, आपने नहीं, कहा फतवा कि- नहीं है। चलो नहीं है, वो तो अक्सर उलमा का आप फतवा जानते नहीं है। हैं, माना आप अक्सर भी जानते हैं ठीक है। फतवा नहीं है। चलो अब मैं फतवा पढ़ता हूँ जो आप कह रहे हैं, जी पढ़े फतवा। वो आप भी उधर खोल लें भले। हाँ खोले आप। सवाल, जो औरत सुन्निया राफजी के तहत में बाद ज़ुहर रिफ्ज़ के बखुशी खातिर रह चुकी हो, फिर रिफ्ज़ या दूसरे शे को हीला करार देकर बिला तलाक अलहदा हो जाए और सुन्नी से निकाह कर ले, तो ये निकाह बिला तलाक शिया के क्या हुक्म रखता है?
اور اولاد سنی کی اگر راضی ہو جائے تو پدر سنی کے ترکے سے محروم الارث ہو گئی یا نہیں؟ جواب: جس کے نزدیک رافضی کافر ہے، ہاں، جس کے